हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर करने जा रहे हैं। वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट है ये, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और एक दूसरा अलग टाइप का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दैट विल बी सेकेंड लेक्चर। आई मीन इसके बाद का लेक्चर होगा। तो आज डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, और इसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही बेहतरीन डिटेल तरीके से समझना चाहिए ताकि हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकें। So let's enter into the lecture. So we are talking about product of vectors today, and in fact, ठीक है, that title is there कि हमें vectors का product करना है, but you see the larger title is here, operation of multiplication with vectors. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारा ध्यान इस बात पे जाए कि अगर हम किसी वेक्टर को के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विथ वेक्टर। किसी नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। नंबर टू, multiplication multiplication of a scalar with vector. That's another point. And then we come out multiplication of multiplication of vectors, multiplication between vectors, between दो वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। सो जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात कहते हैं तो somehow we think of this, but ये जानना भी जरूरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विथ वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ वेक्टर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड देन we'll enter into this part. So let's understand this. पहला केस को हम लोग यहाँ देखते हैं. So see, like if there is a vector a, if this is a vector a, suppose करो this is vector a, and now you make a vector like this, okay, and now you make a vector like this, all right, and now you make a vector like this. Okay, so now here you have to understand if this is vector a, अगर ये vector a है, so this is 2a vector, this is 3a vector, and this is minus 3a vector. तो जब किसी वेक्टर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, if the number is positive, then the direction remains same and the magnitude becomes number times. Like here this is a vector a multiplied with 3, so this 3 times इसका जितना magnitude है उसका 3 times हो जाएगा. If you are multiplying with a number negative, then the direction gets reversed. So what we have learned that, like when vector is multiplied with a number with a number with a number, then its magnitude becomes number times of the magnitude of original vector. This is when a vector is multiplied with number, then its magnitude becomes number times of the magnitude of the original vector, and the direction remain remains same if number is positive, and in case number is negative, direction gets reversed.
direction gets reversed. So the idea is that कि physical quantity जो है like vector A, this is 2A, so this will be the same vector, same physical quantity. Physical quantity में कोई change नहीं होता. So this is first point which we have to understand. Now the second one is that multiplication of a scalar with vector. Multiplication of a multiplication of a multiplication of multiplication of a scalar with vector. तो अगर हम वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें then what is going to happen? So let's see, like we know that force is equal to mass into acceleration. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी है मास और एक्सेलरेशन अदर फिजिकल क्वांटिटी, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो आउटपुट इज समथिंग लाइक दैट. magnitude will be right scalar times scalar magnitude times magnitude of किसका, magnitude of the vector जो resulting vector होगा, magnitude of the resulting vector will be scalar magnitude times of magnitude of original vector. आपको बात समझ में आ गई? लाइक हियर इन दिस सेंस कि अगर इस एक्सेलरेशन वेक्टर को आपने मास से मल्टीप्लाई किया तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो मास के मैग्नीट्यूड टाइम्स हो जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर दैट इज फोर्स will be scalar magnitude times of right magnitude of the resulting vector will be scalar magnitude times of the magnitude of original vector. This is one thing. Number two, direction of resulting vector will be same as that of original vector. क्योंकि आपने एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया है, सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि आपने इसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा. अब थर्ड पॉइंट इज दैट जो फिजिकल क्वांटिटी है, द रिजल्टिंग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी resulting vector physical quantity resulting vector physical quantity will be different than original vector. जो ओरिजिनल वेक्टर है उससे वो डिफरेंट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सो जैसे f is equal to ma का आपने देखा, लाइक सिमिलरली एग्जांपल लाइक p is equal to mv मास इनटू वेलोसिटी. ऐसे बड़े सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आपने एक एग्जांपल देख लिया, एक एग्जांपल यहाँ देख लिया. so many, like suppose f is equal to charge into electric field, q into this electric field. So this is something like that. So ऐसे बड़े सारे फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे. तो ये हमने दो पॉइंट तो समझ लिया, like this we have done and this we have done. Now we are here for multiplication between vectors. तो अगर वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन करना हमें, so we are going for that. Multiplication between vectors.
मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर्स के बीच की मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर्स की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट देयर आर multiplication between vectors में suppose करो there are two vectors like this one and there is another vector. So I said that there are two vectors like this is vector A and this is vector B. So now if you say this is vector A and vector B, ये vector A है और ये vector B है, अगर इनके बीच में आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर्स की बात करना चाहते हैं, यानी कि इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो इनके बीच में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक तरीका ये है जिसमें हम एक को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ, और एक में ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें क्रॉस का साइन लिया। एक बार इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बन जाए, और एक बार ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाए। If there are two vectors A and B, and if vector A and vector B are multiplied in such a way that the result is a scalar, and there is another way that vector A vector B को आपस में मल्टीप्लाई किया and the result is vector. So in that situation, right, this is called vector product and this is called scalar product. तो हम लोग इन दोनों को अलग अलग नाम से जानते हैं, like this is something else and this is something else. तो अगर आपने कुछ इस तरीके से किया है, so like so this is what we are saying कि अगर आपने ये इस तरीके से किया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और वेक्टर बी, और उन दोनों वेक्टर के बीच में आपने प्रोडक्ट लिया और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट लिया कि स्केलर आया, और अगर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट लिया कि वो क्या आ गया, वेक्टर आ गया, तो ये क्या बनेगा, वेक्टर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, स्केलर प्रोडक्ट। तो जो ये स्केलर प्रोडक्ट है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसमें नोटेशन क्या यूज किया गया है, डॉट का, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और इसमें हमने साइन क्या लिया, क्रॉस का, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ उनके प्रोडक्ट, उनके बीच में प्रोडक्ट लिया जाए और उसके बीच का जो प्रोडक्ट का साइन है वो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया, तो ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, और ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। सो वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि किस तरीके से लिया जा रहा है। वन फैशन इज दिस, अनदर फैशन इज दिस, दिस विल give us a yield of vector, this will give us a yield of a scalar, therefore this is known as scalar product, and the sign is dot, therefore it is also known as dot product, and this is sign is cross, therefore this is also known as cross product. तो हम लोग बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आज की क्लास में पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर टुडे टॉपिक इज डॉट प्रोडक्ट, सो वी आर गोइंग फॉर डॉट प्रोडक्ट। So let me explain you like what is this dot product is, तो होता क्या है। तो ये मैंने एक सरफेस लिया, I've taken a surface, and इस सरफेस के ऊपर मैं कोई ब्लॉक रखना चाहता हूँ, I want to keep a block here like this, मैंने एक यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, और इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ मैंने, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया मैंने, something like this, I can take this force something like this, ऐसे फोर्स ले लेते हैं, ये हमने इस पे एक फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, and now I'm saying that कि ये सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रखा, बॉडी का जो मास है वो m है, और आपने एक फोर्स F लगाया, एंड यू नो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उसके साथ ही एंगल थीटा बनाया। सो माय क्वेश्चन टू यू इज क्या ये पूरा का पूरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है
is this complete force is responsible to make this body? So what do you think? This complete force is responsible to make this mass move? आपने अगर ऐसे फोर्स लगाया तो क्या ये पूरा का पूरा फोर्स इस बॉडी को मूव करने में काम आएगा? सो अब हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड पढ़ा हुआ है, फोर्स को रिजॉल्व करना हमें आता है। तो अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। एक कंपोनेंट देखो यार ध्यान से, एक कंपोनेंट इस फोर्स का कुछ ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, मतलब कि ये फोर्स लगाया और ये फोर्स हमने इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे लगाया। मेरा सवाल है कि क्या ये पूरा का पूरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी को मूव करने के लिए? तो इसको समझने के लिए हमने बोला कि ये फोर्स ले लो, इस फोर्स को रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व कर दिया तो इधर क्या है, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या है, एफ साइन थीटा, राइट। एंड ये जो एम मास की बॉडी है इसका क्या लग रहा होगा, इधर एम जी लग रहा होगा, तो इस यहाँ पे एक एम जी भी लग रहा होगा। तो इस फोर्स का जो एफ कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा, तो ये ग्रीन कलर की जो बॉडी है जो सरफेस पे है, तो वो सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगी, एम जी के बराबर। तो फिर सरफेस भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैंसिल हो जाता है और सिर्फ ये फोर्स जो है एफ कॉस थीटा, ये इस बॉडी को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनली दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस बॉडी मूव, कायदे से। तो अब मैंने ये आपको समझाने के लिए बात कही कि अगर आपने फोर्स एफ लगाया एंड यहाँ से थीटा एंगल पे लगा दिया, तो मेरा सवाल ये था कि डू यू थिंक दिस कंप्लीट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस बॉडी मूव? तो answer should be no sir, it's not that complete force is responsible to make this body. This is the F cos theta which is responsible to make this body move. सिर्फ F cos theta इसको मूव करा रहा है, ना कि F sin theta. तो ये बात हम समझ में हमें आ रही है। तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करके समझा रहे थे, अब सपोज करो हम इसको रिजॉल्व करके ना समझाएं, सीधा सीधा कुछ ऐसे दिखाएं आपको, लेट्स टॉक लाइक दिस, कि अब आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक सरफेस है लाइक दिस, और इस सरफेस के ऊपर आपने कोई बॉडी रख ली, और ये बॉडी रख लिया आपने, इस सरफेस पे आपने कोई बॉडी रख लिया, और अब आप कह रहे हो कि इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कोई फोर्स लगा दिया, यू अप्लाइड अ फोर्स लाइक दिस, और ये फोर्स आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये थीटा एंगल बना के चल रहा है। सो नाउ द आइडिया इज कि अगर ये सब कुछ है, ये यहाँ से थीटा एंगल बना के चल रहा है, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये फोर्स सेफ लगाया, और ये बॉडी का मास एम है। तो मैं पूछूं कि टी टाइम के अंदर या इतना डिस्प्लेसमेंट, लाइक यहाँ सपोज करो जब वो यहाँ पे था, दिस पॉइंट इज ओ, और इसको शिफ्ट करा दिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट एस करा दिया, लेट्स सपोज यहाँ से इसको एस डिस्टेंस मूव करा दिया, यहाँ तक मूव करा दिया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क यू आर गोइंग टू डू? तो फोर्स आपने ये दिखाया है, एंड यू नो दिस कंप्लीट फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस बॉडी मूव, तो इसका एफ कॉसेटा इसको मूव कराएगा और एफ कॉसेटा इसको आगे लेके जाएगा। एंड हम सब लोगों ने पढ़ा है कि नाइन्थ क्लास में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम सब लोगों ने पढ़ा ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एक मिनट, तो हम सब लोगों ने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसको मूव कराने वाला फोर्स कौन है, तो आपने बोला एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है, एफ कॉस थीटा इनटू एस। तो इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें, फोर्स वेक्टर यहाँ पे एक डॉट लगा दें और एस वेक्टर ऐसे लिखें, और बोलें कि जब भी कोई नोटेशन इस तरीके से इस्तेमाल हो, लाइक फोर्स और डॉट एस, तो इसका मतलब हुआ फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, यानी कि हम इसको बोले, इसका मीनिंग ये निकलता है एफ कॉस थीटा इनटू एस। तो अगर हमने कुछ ऐसा बोला, समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, इस पे एक मास रखा, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने बोला कि बेटा एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा फोर्स इस बॉडी को मूव करने में रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका जवाब है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकालेंगे सर, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, एंड वी नो दैट दिस एफ साइन थीटा इज
कैंसलिंग बाय दिस mg, यानी कि ये ऐसे कैंसिल होगा, सिर्फ ये फोर्स होगा जो इसको मूव कराएगा. दैट इज फाइन. नाउ आई डिड द अनदर फिगर मैंने यहाँ बनाया, बोला कि फिर से हमने इसको बना दिया, ये मास का, इस पे फोर्स लगा दिया. और सपोज करो कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये फोर्स इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करा के ले गया, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा. तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि भाई वर्क होता क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसमें क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को हम डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं तो हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है. दैट्स करेक्ट. तो हमने बोला कि ओके, इसका मतलब कि एफ कॉस थीटा इनटू एस चाहिए आपको. दैट्स करेक्ट. अब अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसको, तो एफ डॉट एस लिखते हैं, और इस नोटेशन को मैंने कि देखो ये स्टाइल है, एफ वेक्टर एस वेक्टर और डॉट एस, और इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि भाई जब भी ऐसा लिखा जाएगा तो इसका मतलब हुआ एफ कॉस थीटा इनटू एस होगा. तो अब आपने इतने देर में क्या समझा, यानी कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स एंड वी आर टेकिंग देयर डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसमें से जो पहला वेक्टर होगा उसका एक कंपोनेंट निकाल लीजिए दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, और फिर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कीजिए. तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो हमारी ये जरूरत थी, ये मैंने आपको यहाँ क्या दिखाया, ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ये क्या है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको दिखा रहा था. इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. सो लाइक अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये डॉट लगा दिया जाएगा तो ये मीनिंग निकल के आता है. तो इसी चीज को मैं आपको जनरलाइज करके समझाता हूँ अगले पेज पे. सो लेट्स सी, देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी. हम दो वेक्टर ले लेते हैं, कोई एक वेक्टर लेते हैं कुछ इस तरीके से. एक वेक्टर हमने ऐसे लिया, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर हमने कंसिडर किया कुछ इस तरीके से, ऐसे ले. दिस इज व्हाट वी हैव टेकन. और मैं इस पार्ट को ना, इसके इससे आगे वाले पोर्शन को मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ. मैं showing like this. जानबूझ करके ये पोर्शन को मैंने डॉट डॉट किया हुआ है. एंड नाउ आई एम सेइंग दैट दिस इज वेक्टर, यहाँ पे एक एरो लगा है, दिस इज एन एरो हियर, या दिस इज A and this is B. This is B vector and this is A vector. And the angle between A and B is theta. So अगर वेक्टर A और ये वेक्टर B है, so A dot B means what? A dot B means A cos theta into B वेक्टर का मॉड. दैट इज व्हाट वी मीन टू से. तो अगर हम इसको समझाएं तो ये क्या निकल के आ रहा है, इट इज सेइंग दैट कि आप एक वेक्टर ए के टिप से कंपोनेंट आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और परपेंडिकुलर डालने के बाद आप बोलिए कि ये जो आया है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये वैल्यू क्या है, ये क्या चीज है. तो आप पाएंगे कि ये जो रिजल्ट है दिस वन. सो अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए के टिप से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और बोला कि ये जो है वो ए कॉस थीटा है, और ये पूरा दिस इज ओ ए एंड दिस इज बी. सो दिस वेक्टर ए और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये क्या है, this point is M, this point is M here, this point is M here. So OM is A cos theta and this is OB vector is vector B. So A dot B का मतलब क्या हुआ, A dot B का मतलब हुआ, A dot B का मतलब हुआ OM and this is OB, OM into OB. So why this A dot B is this? तो ये एक तरीका हो गया कि अगर दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल थीटा दे रखा होगा, तो ए डॉट बी का मतलब होता है वेक्टर ए का एक कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग जो है, और उसको वेक्टर बी के मॉड से मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट इज दिस ओएम, सो दिस ओएम इज कंपोनेंट, विल से दैट मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along vector b.
What is OM? OM is magnitude of component of vector A along vector B. And what is OB? OB. What is OB? This OB is magnitude of magnitude of magnitude of vector magnitude of vector B. So अगर A dot B कहा गया, so this comes out A cos theta और B vector का mod, that is OM into OB. ये बात समझ में आएगी. तो हम इसको A cos theta into B लिख सकते हैं, और दिल करे तो उसको AB cos theta भी लिख सकते हैं, और उसको हम वेक्टर A का mod, वेक्टर B का mod और into cos theta भी लिख सकते हैं. That is the meaning of A dot B. So अगर कोई दो वेक्टर दे रखा हो तो A डॉट बी का मतलब क्या हुआ? वेक्टर A का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर B और फिर उसको B के मॉड से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज व्हाट द मीनिंग इज. अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये ए बी कॉस थीटा जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लाइक अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. कैन इट बी लाइक दिस? A डॉट बी को हम ऐसे लिखे A का मॉड और B कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर. तो एक्चुअली क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कुछ इस तरीके से. अब ये देखिए, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से इसके ऊपर. ओके, एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस. तो अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं? यहाँ ये देखना चाहिए आपको कि अगर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में एक वेक्टर ए का मॉड और बी कॉस लिख रहे हैं, तो ये नाउ दिस इज ओ बी. इस पॉइंट का नाम लिख दो आप एन, एंड नाउ दिस इज परपेंडिकुलर. अब ये ओ और एन जो आया, right? This is vector A come out, that is OA, and what is B cos theta? That is ON. So this is OA is vector A ka, this vector A come out, or ON is like OA into magnitude of component of vector B along vector A. So A dot B can also be written like this. A dot B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये मीनिंग निकल गया है. दिस इज A into B cos theta and this could be AB cos theta. तो इस पेज पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि if there are two vectors A and B and वहां पे हम एक का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग जो बनता है उसका मैग्नीट्यूड ले लें और फिर दूसरे वेक्टर के मॉड से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ A डॉट B. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मीनिंग क्या निकला और ये कैसे सोचा हम लोगों ने, व्हाई वी हैव कम टू दिस थॉट, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन पैदा करने के लिए बताया कि सी देयर इज अ नेसेसिटी, लाइक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है. हमें पता है कि हम अगर किसी बॉडी को ऐसे रख करके ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो सिर्फ ये कंपोनेंट ही उसको मूव करा रहा है. और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जब हमने ये रिजल्ट पढ़ा तो हमारी कंडीशन ये थी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगता है और उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, अब फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हमने फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल दिया जो बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फिर एफ कॉस थीटा को ऐसे मल्टीप्लाई. तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मीनिंग ये निकलता है. अब मैंने इस बात को यहाँ पे जनरलाइज कर दिया कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, लाइक दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो अगर आप वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लेते हैं, दैट इज ए के टिप से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला एंड ना ओ एम, so this is a cos theta and this is what OB. तो a cos theta को OB से मल्टीप्लाई किया यानी कि OM into OB किया, तो ये AB cos theta आएगा. इसको हम वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट कहेंगे और उसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो जो वेक्टर A डॉट B का वेक्टर A वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मीनिंग क्या निकला, राइट? वेक्टर B का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
magnitude, product of magnitude of component of one vector along other vector and magnitude of other vector. समझिए क्या लिखा हुआ, a डॉट b का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर along other vector and magnitude of other vector. सो अगर b वेक्टर a डॉट b यानी कि a का कंपोनेंट b पे ले रहे हैं, तो a का जो b पे कंपोनेंट है उसका जो मॉड है, उस मॉड को वेक्टर b के मॉड से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ a डॉट b. दिस इज व्हाट द सिंपल इज. तो ये हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ. अब कितनी बार क्या होता है कि जो a का कंपोनेंट हम b पे ले रहे हैं, पता चला वो a का कंपोनेंट b पे जो आया वो b के डायरेक्शन में ना होकर के बल्कि वो कंपोनेंट दूसरे साइड आने लगा. ऐसा भी हो सकता है भाई. तो उस केस में वो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल, इतनी बात आप समझ पाए हैं, तो अब मैं ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये डॉट बी क्या क्या मीनिंग है. अब मैं एक केस ऐसे दिखाता हूँ आपको एंड आई वांट कि आप उसको समझें. सपोज करो ये वेक्टर बी है एंड आई से दिस इज अनदर वेक्टर ए एंड नाउ आई से दैट ए डॉट बी निकालो. ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालो. तो अब आपके लिए मुसीबत ये है कि अगर आप इसको कहते हैं दिस इज वेक्टर बी एंड दिस यू से वेक्टर ए एंड इनके बीच में ये एंगल है थीटा, राइट. और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. तो अब जब वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, ये वाला निकलेगा ना. इफ यू फॉर दैट यू विल हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर. कहाँ से, इसके टिप से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो अब उस केस में जो ये कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये जो कंपोनेंट आएगा कुछ इस तरीके से. So now this component is in the opposite direction of vector b. तो वेक्टर बी का डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट हो गया. तो अब उस केस में ये जो कंपोनेंट और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. तो अब अगर ऐसी सिचुएशन हो गया, तो दिस इज अल्फा, तो हम कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. अगर आप कहना चाह रहे हैं तो भाई इनके बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा. तो हमने बोला ओके ए बी cos थीटा. दिस कैन बी रिटन एज ए बी एंड cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा लिख सकते हैं. तो ये फाइनली क्या होगा, ए बी एंड cos 180 माइनस cos अल्फा लिख सकते हैं. सो फाइनली दिस विल बिकम माइनस ए बी cos अल्फा. सो आया क्या, ये माइनस ए cos अल्फा एंड बी का मॉड. दिस इज व्हाट इट हैज कम. तो अगर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में आकर के अपोजिशन में आ जाए, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जा रहा है. सो दिस इंप्लाइज दैट डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव. डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, यानी कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है एंड डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है. अब जैसे ये बात कहो तो एक बच्चे के दिमाग में सवाल उठता है कि आपने तो बताया कि सर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो पॉजिटिव स्केलर और नेगेटिव स्केलर का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव स्केलर एंड नेगेटिव स्केलर. दैट्स ट्रू. तो वर्क से हमने बात स्टार्ट की यहाँ पे, देखो वर्क से. तो आप बताओ पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि एक बंदा, सपोज कर लो जैसे मान लिया जाए आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करना चाह रहे हैं, और somebody is not allowing you to do that work, तो डेफिनेटली आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जितना आप काम कर सकते थे बिना अपोजिशन का वो आउटपुट ज्यादा बड़ा होता. लेकिन चूंकि उसने अपोजिशन में काम किया आपके, तो आपका आउटपुट पहले से छोटा हो गया. सो मैं इस चीज को कुछ ऐसे समझाऊंगा कि मान लो यहाँ पे एक सरफेस है और इस सरफेस पे आपने एक बॉडी रख दी, और उधर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग गया और उधर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग गया. और सपोज ये 10 न्यूटन 5 न्यूटन से वाकई बड़ा है, तो डेफिनेटली बॉडी यहाँ से यहाँ तो कुछ जाएगी. लेट सपोज 2 मीटर चली गई. तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि वर्क कितना होगा ये 10 न्यूटन का, व्हाट इज द वर्क डन ऑफ दिस 10 न्यूटन. तो यू विल से 10 into 2, 10 into 2, दैट इज द वर्क डन. फोर्स इनटू, क्योंकि 10 न्यूटन 2 मीटर के डायरेक्शन में ही है, यानी कि 20 जूल हो गया. तो ये वर्क डन किसका हुआ भाई, 10 न्यूटन का हुआ. लेकिन मैं अगर 5 न्यूटन का वर्क पूछूं, इसको W1 कह दिया, W2 पूछूं, तब क्या होगा,
तो ये 5 न्यूटन इधर लग रहा था, लेकिन बॉडी किधर गई, इधर की तरफ, तो मैंने 5 इंटू 2 लिखा एंड दैट इज यहाँ पे माइनस, यहाँ ऐसे लगा के और लिख दिया -10 जूल। अब यहाँ -10 जूल के मीनिंग क्या हुआ, ये 5 न्यूटन ने वर्क करने में, यानी कि फाइनली इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसने सहयोग नहीं किया है, इसने हमें एडवांटेज नहीं पहुंचाया है, इसने हमारे लिए क्या किया, अपोजिशन पैदा किया हुआ, तो वर्क निगेटिव आ गया। दैट इज व्हाट द मीनिंग है। और मैं पूछूं कि नेट फोर्स का वर्क डन बताओ, यानी कि ये क्या निकाला आपने, दिस यू हैव फाइंड वर्क डन बाय 10 न्यूटन निकाला आपने। ये क्या निकाला आपने, वर्क डन बाय 5 न्यूटन निकाला। अब मैं पूछूं वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब हम लोग वेक्टर तो पढ़ ही चुके हैं ना भाई, तो हमें पता है कि नेट फोर्स तो 5 न्यूटन का आएगा इधर की तरफ, ये 5 न्यूटन नेट फोर्स है, दिस इज योर नेट फोर्स। तो अब नेट फोर्स का वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा, 5 और इंटू 2 मीटर, दैट कम्स आउट 10 न्यूटन मीटर, दैट इज 10 जूल आ गया। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये कैसे आया, पॉजिटिव आया, 10 जूल पॉजिटिव। तो ये +20 है और ये -20 है, अगर W1 प्लस W2 करते तो आपका रिजल्ट क्या आता है, +20 -10, तो फाइनली क्या आ जाएगा, +10 आता है ना। तो कुल मिला के बात क्या कही जाएगी, इसी डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड वो स्केलर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी हो सकता है, उस प्लस माइनस का भी कोई सिग्निफिकेंस होता है, बट वो प्लस माइनस सिग्निफिकेंस में ये बताना चाह रहा है कि ये एक फेवर कर रहा है उस आउटपुट के लिए या उसको अपोज करना चाह रहा है। सो दिस इज हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एक इसका मतलब ये हुआ कि ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग बी के डायरेक्शन में था, अगर ए का कंपोनेंट बी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो डेफिनेटली वो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो बच्चों हमने ए डॉट बी होता क्या है, हमने ये सीखा कि ए डॉट बी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर along other vector and magnitude of other vector, this is the gist of this। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का मेन पॉइंट है, दिस इज व्हाट वी शुड लुक एट, ये हमारा मेन पॉइंट है। अब जो कुछ हमने पढ़ लिया है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारा बेसिक पॉइंट है कि ओके डॉट प्रोडक्ट होता क्या हमने समझा। अब इस पे हम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स करेंगे, विल बी डूइंग वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो हम एक एक करके उन पॉइंट्स को लिखने जा रहे हैं, एंड आप जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सो लेट्स एंटर इनटू दैट एग्जाम्पल एंड सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट। जो हमने सीखा है, यानी कि अभी यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, नोट करके इससे लिखते हैं। ए डॉट बी का मीनिंग क्या हुआ, पहले तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी मस्ट अंडरस्टैंड। नंबर 2, ए डॉट बी का मतलब हुआ a cos theta into b, or this can be written as a into b cos theta, and this can be written as a vector का mod b vector का mod और into cos theta, कोई भी मीनिंग आपने कहा, this is what we have understood। Third, like a dot b means component of vector a along vector b and उसका mod और फिर multiplied with b का mod। एक दूसरा मीनिंग इज component of vector b along vector a उसका mod and फिर vector a का mod। That's how you can interpret। So a dot b is this, या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। अब a dot b जो है प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। a dot b is either positive और नेगेटिव और जीरो। So a dot b is positive, negative and जीरो भी हो सकता है। So meaning is that कि जब पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ, वो आपको मैंने मतलब समझा दिया, और ये जीरो भी हो सकता है। इज दैट ओके ना? ओके। तो जो ये डॉट प्रोडक्ट से जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन ना तो वो ए के जैसा होगा ना वो बी के जैसा होगा, एंड दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है जी। सो ए डॉट बी इज लाइक अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं इस चीज को पहले ये समझा दिया और यहाँ पे ये लिखा
ए डॉट बी से जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी आया दैट इज ए बी कॉस थीटा जो आया, यानी इस फिजिकल क्वांटिटी का ये जो फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, दिस फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट सेम, दिस फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट सेम. सो मीनिंग इज लाइक नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी, नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी. तो मैंने यहाँ पे ये लिखना है नॉट ए एंड ए बी कॉस्ट नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी. बच्चों गलती मत करना है, ये नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी बहुत सिंपल लॉजिक है. दिस इज नॉट बी एंड दिस ए बी कॉस थीटा इज नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी, नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी. मतलब ये बात बताना भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट कितनी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस तरीके की गलती कर देते हैं. तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपने मल्टीप्लाई किया तो वर्क आएगा. तो वर्क ना तो फोर्स है और ना तो वो डिस्प्लेसमेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी लिखा है वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क इज नॉट इक्वल टू फोर्स एंड वर्क इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ये मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपको ये बात समझा दी. यहाँ पे इस वाले पॉइंट से रिलेटेड जो बात थी वो समझा दी. तो हमने अब हम आपके सामने ये पॉइंट रखेंगे, सिक्स पॉइंट. दिस इज डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब देखो वेक्टर ए को जैसे बोले जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. अब ये जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगो तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. ये जीरो वेक्टर होगा जिसको हम जीरो लिख सकते हैं. ठीक है जी. अब अगर किसी ने बोला वेक्टर ए को या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कोई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और उसको आपने डॉट ले लिया सी के साथ, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी. ये मीनिंग हुआ. इसका मतलब अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता. ये अब मतलब ये डॉट प्रोडक्ट में जो प्रॉपर्टीज लगती हैं उसको आपको समझाने की कोशिश हो रही है. आई होप अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ए को जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो जीरो वेक्टर आ गया. तुम कहोगे सर जीरो वेक्टर आने का मतलब ये तो स्केलर आता है. आई मीन दिस इज व्हाट यू विल से दैट कि जीरो. तो आप यहाँ पे ए डॉट जी, तो यहाँ से ये जीरो वेक्टर लिखना गलत होगा क्योंकि ये जीरो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, तो आप यहाँ वेक्टर नहीं लिख सकते. so this will be something very wrong जो कि मैंने लिख दिया है. तो यहाँ से ये हटा दिया और इसकी कोई जरूरत नहीं है. so a dot b is a dot 0 is 0. so this is the point we have understood. now let's talk about कि अगर वेक्टर a को वेक्टर a के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले जाए इसका क्या मतलब हुआ. सो मीन्स देयर आर वेक्टर a और वेक्टर a तो दोनों एक ही डायरेक्शन में. तो ये एक मतलब एक तरीके से मैथमेटिकली आपको समझना होगा कि इसका क्या मीनिंग है. सो इट मीन्स a and this is a and दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री. this is 0 degree, so this will become a and cos 0 is 1, so finally this will be a square. so what does it mean, this is vector a का स्क्वायर. वेक्टर a को वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो वेक्टर a स्क्वायर लिखने का मतलब बच्चा लोग ध्यान रखना, ये ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है वेक्टर a स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है. नाउ विल से दैट इन 9 प्रॉपर्टीज पे चलते हैं. नाउ समबडी से दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b ऐसे लिखा हुआ है और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ. अब क्या मीनिंग निकलेगा कर्व करके देखते हैं. सो दिस इज वेक्टर a डॉट वेक्टर a, फिर वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b इसके साथ किया, फिर दिस इज प्लस b डॉट a दैट्स ओके एंड फिर माइनस b डॉट b दैट्स व्हाट इट इज. सो अगले स्टेप में ये क्या पढ़ लिया आपने, ये हो गया a स्क्वायर, ये आ गया माइनस a डॉट b एंड दिस इज प्लस b डॉट a एंड दिस इज माइनस b स्क्वायर. सो यू नो a डॉट b और b डॉट a दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी तो ये सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे. सो फाइनली दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे. 10वां पॉइंट जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा था, a डॉट b एंड इफ समबडी आस्क b डॉट a, तो मीनिंग तो सेम होगा ना. ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में भी दिखाया, a डॉट b का मतलब लाइक दिस और सेम मीनिंग b डॉट a लिख दो तब भी एक ही बात है. सो a डॉट b एंड b डॉट a
a dot b and b dot a are ab cos theta. इसका मतलब हुआ कि a dot b और b dot a को अलग अलग नहीं समझाना जाना चाहिए. तो कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं. This point can be like dot product is commutative. Dot product is commutative. मतलब a dot b और b dot a are same thing. तो ये बेसिक बात आपको मैंने अभी समझाई कि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं समझ सकते. तो ये पॉइंट्स तो आप समझ गए. अब मैं आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ लेके चल रहा हूँ. जरा आप यहाँ देखिए, 11 नंबर पॉइंट था. या सो अगर मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप, तो ये कितना हुआ? तो यू नो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर. सो 1 1 cos 0 डिग्री. So this will be 1. So similarly j dot j क्या होगा? j dot j क्या होगा? वो भी 1 आ जाएगा. k dot k भी क्या होगा? वो भी 1 आ जाएगा. राइट. सो कुल मिला के बात क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि i dot i, j dot j and k dot k all is equal to 1. ये डायरेक्शन इंडिकेटर होते हैं, ये हमने पढ़ा ही है. सो दिस इज समथिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट. ओके, नाउ अगला पॉइंट देखिए. अगर मैं आपसे i डॉट j के बारे में बात करूं तो ये क्या होगा? व्हाट इज दिस i डॉट j? सो यू नो i का डायरेक्शन और j कैप का डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है. सो इसे 1 into cos 90 डिग्री. So this will become 0. So similarly this also imply कि अगर j डॉट i पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? 0 होगा. अच्छा, अगर j डॉट k पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 होगा. एंड k डॉट j पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? k डॉट j पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? 0 होगा. अगर राइट अगर k डॉट i पूछा जाए वो भी क्या होगा? 0 होगा. एंड दैट शुड बी i डॉट k. इसका मतलब कि ये कैसे आ रहा है ये आप समझ गए ना. डॉट प्रोडक्ट i का मॉड j का मॉड यानी 1 into cos 90. सो 11 और ये 12 पॉइंट आप समझ गए. अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये सारे पॉइंट्स तो आप समझ गए, क्लियर है. अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर a है एंड दिस इज a1i. और आई वुड लाइक टू टेक नॉट दिस पॉइंट, पहले ये समझते हैं. लाइक एम ए वेक्टर डॉट एन बी वेक्टर, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो इसका मतलब एम कोई नंबर है, एन कोई नंबर है, तो आप पहले इन नंबर्स को आप क्या करेंगे? बाहर निकाल दीजिए. एंड देन यू राइट ए डॉट बी. आप ऐसे लिख सकते हैं. और यू कैन राइट एम एन ए वेक्टर डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं. और अगर आपका दिल करे तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एम एन बी वेक्टर. सो दिस इज हाउ दिस कैन बी रिटन. 13 पॉइंट कैन बी. तो ये इस बात को आपको थोड़ा समझना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई से दैट 2a डॉट 3b वेक्टर, 2a डॉट 3b वेक्टर. सो इसका क्या मीनिंग है? 6a डॉट b. दैट्स व्हाट द मीनिंग इज. यानी कि 6ab cos थीटा, जो भी आ रहा होगा, जो भी थीटा होगा हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे. सो नाउ आई से दैट लेट्स सपोज a वेक्टर है कोई हमारे पास एंड दैट इज a1i प्लस a2j प्लस a3k. ऐसा कोई हमारे पास वेक्टर है. और वेक्टर b जो है वो है b1i प्लस b2j एंड b3k. ऐसा कुछ हो. तो अब अगर मैं बोलूँ a डॉट b बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप. इसको ऐसे लिखो और फिर इसको आप डॉट बनाओ and write b1i cap, b2j cap and b3k cap, something like this. अब क्या होगा यहाँ से? तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आप a1i फिर b1i, ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. फिर इसको इसके साथ करोगे तो a1i b2j. फिर इसको इसके साथ करोगे तो a1i डॉट b3k, लाइक दिस. फिर क्या करोगे आप? a1i और a1i से आपने कर दिया, फिर a2 से स्टार्ट करो. तो a2j एंड देन b1i. और फिर आप एक पॉइंट और ले लो, a2j डॉट b2j, करेक्ट. एंड देन a2j
a to j dot b3k. Now you can write this is a3k dot b1 I cap, and then you can write okay a3k dot b2j, and then you can write a3k dot b3k. करेक्ट? ऐसा ही होगा ना भाई? मेरे को तो नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया, वो बिल्कुल समझ में आ गया। अभी आपने पढ़ा है कि अगर 2a डॉट 3b होगा तो 6 बाहर निकाल के a डॉट b लिख सकते हैं। तो इसमें a1 और b1 को बाहर निकाल के i डॉट i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? a1 b1 बाहर निकाल के i डॉट i, और i डॉट i क्या होता है 1। फिर a1 b2 बाहर निकालेंगे i डॉट j आएगा, और i डॉट j क्या होता है 0। तो इसका मतलब कि ये आएगा क्या रिजल्ट? तो बच्चों मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैंने जितनी बात पढ़ाई आपको, मैं बाकी इस जगह पे इस रिजल्ट को लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब a डॉट बी फर्दर क्या है जी? तो यहाँ से देखो, दिस विल बिकम a1 b1 क्योंकि i डॉट i होगा, ठीक है जी। सो दिस इज इनटू 1। ओके, इसकी बात करो a1 b2 बाहर निकालोगे, और i डॉट j क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। फिर इसकी बात करो a1 b3 बाहर निकालो, i डॉट के, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर इसकी बात करो a2 j b1, a2 b1 बाहर निकालोगे j डॉट i, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर a2 b2 बाहर निकालोगे j डॉट j, तो ये तो 1 आ जाएगा, यानी कि a2 b2 आ गया। फिर a2 b3 j डॉट k, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर a3 b1 एंड देन k डॉट i, ये भी 0 हो गया। फिर a3 b2 ये भी क्या हो गया k डॉट j 0 हो गया। और फिर क्या आ गया a3 b3 एंड k डॉट k, दैट इज 1। सो फाइनली a डॉट b आया कितने के बराबर हमारा? दैट हैज कम टू a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3। सो समथिंग वी हैव, जो हमें यहाँ कुछ मिला, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट के फॉर्म में आ गया कि अगर दो वेक्टर कुछ ऐसे दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा ये लिखा जा सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस। नाउ आई विल टेक यू टू अनदर कॉन्सेप्ट। अब आपने देखिए कि आपको ये पता है कि a डॉट b क्या होता है, a का मॉड b का मॉड एंड इनटू cos थीटा। सो cos थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, a डॉट b, और नीचे क्या लिख सकते हैं a का मॉड एंड b का मॉड। a dot b is ab cos theta, and cos theta is what, a dot b upon a का mod and b का mod. This is what the point is. यानी कि दो, यानी कि दिस इंप्लाइज कि अगर दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, यानी यहाँ से थीटा निकालना है, तो थीटा कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ a डॉट b अपॉन a का mod and b का mod. That's what the point is. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, हेलो वेक्टर a is equal to a1i a2j a3k है, राइट, और वेक्टर b जो है वो b1i एंड b2j एंड b3k है। सो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? सो सिंपल, दिस cos थीटा इज, तो पहले a डॉट b क्या होता है इनका, सो a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, एंड नीचे आपको क्या चाहिए a का मॉड, तो इसका मॉड क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होल अंडर रूट, एंड दिस इसका मॉड क्या होगा, दैट इज b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये cos थीटा आ गया हमारे पास। सो इस तरीके से हम cos थीटा निकाल सकते हैं, फिर इनकी वैल्यूज रख के थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स करके निकाल लेंगे। तो एक एग्जांपल यहीं पे लेते हैं, राइट। लेट्स सपोज a वेक्टर इज 4i प्लस 2j माइनस 3k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k। सो अब अगर इनके बीच में फाइंड थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट सॉल्व इट। ओके, सो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 4 एंड 2 एंड माइनस 3। सो दैट इज 4 2 6 माइनस 3, दैट इज 3। एंड ए का मॉड कितना आ गया, सो दिस इज रूट ऑफ 16 एंड 4,
20 and 9, that is root 29. और b का mod कितना आ गया? So that comes out root of 3. So now finally cos theta is equal to 3 divided by root 29 and root 3. काट दोगे आप इसको तो ये root 3 आ जाएगा. So this will be root 3 upon root 29. So theta is equal to cos inverse of root of 3 by 29. Something like that. This is how we can find this angle between this. तो ये point आपको समझ में आ गया. Okay. Now I'll take this another point here. Let's go to the another page and understand this. अगर कोई कहता है कि hello vector A is parallel to vector B, A is parallel to B, then A dot B कितना होगा उसके बीच में? While parallel है, so this is vector A, vector B into cos 0 degree, so this will become AB cos 0 1. So यहाँ पे अगर A dot B AB के बराबर आया, this implies vector A is parallel to vector B. So अब ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट की तरीके से हम लोग उसको ले लेंगे. क्या कि अगर दो वेक्टर के बीच में उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, इसका मतलब वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है. ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, तब उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? सो दिस विल बी ए बी cos 180 degree. So this will be AB minus 1. So this is minus AB. तो उस केस में आपने क्या देखा? If A dot B is equal to minus AB, this implies vector A is anti-parallel to vector B. तो ये हमारे लिए दूसरा एक तरीके से रिजल्ट याद करने लायक हो जाएगा. हमें याद रखना चाहिए कि अगर एंटी पैरेलल प्रूव करना है तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट. ठीक है जी. नाउ आई विल से दैट another point पे जाए. So what we are saying that let's suppose कि vector A is perpendicular to vector B. So this implies vector A dot vector B क्या होगा? So this is A B cos 90 degree. मतलब cos 90 तो 0 होता है. So this is AB into 0 यानी कि 0. अब यहाँ से क्या सीखा? If vector A dot B is equal to 0, this implies vector A is perpendicular to vector B. Right? Perhaps, but condition है इसमें क्या? If A का mod is not equal to 0 and B का mod is not equal to 0. तो ये अपने आप में फिर बेहतरीन कंडीशन है जिसको हमें याद रखना चाहिए. अगर दो वेक्टर के बीच में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है और उन दोनों वेक्टर की इनिशियल वैल्यू यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उनका मॉड है जो वो 0 है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. इतना पॉइंट तो आप समझ गए. these things you have been able to understand everything. ये सारे पॉइंट समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है. तो ये सब याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन सॉल्व करने में इन सब की जरूरत होती है. So now we'll talk about another point. Let's see here. Okay. So if I say that कि vector A is equal to xi and plus yj, right? And vector B is equal to yi minus xj, something like this. तो उस केस में A dot B क्या होगा? Then A dot B is equal to will be writing xy फिर minus yx and that comes out 0. So this implies vector A is perpendicular to vector B. अब यहाँ से हम एक मैसेज सीखते हैं. क्या है? देखो दो वेक्टर हैं अगर और इन दोनों में जैसे i के साथ x है और j के साथ y है और अगला वेक्टर में क्या हो रहा है? इनके से जो न्यूमेरिक मल्टीप्लाई थे वो इंटरचेंज हो गया और बीच का साइन बदल गया. तब उस केस में आप पहचान कर पाएंगे कि ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर वेक्टर से. तो ये जो सीखा आपने यहाँ से ऐसे समझना है कि अगर वेक्टर A इज इक्वल टू सपोज mi प्लस mj है
एंड वेक्टर बी, अब n को यहाँ रख दो और m को यहाँ रख दो और यहाँ कर दो i और यहाँ कर दो j और यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, राइट? दिस इम्प्लाई a परपेंडिकुलर टू b। तो ये समझ में ये मैसेज हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। हमने ये सीखा है कि अगर हमें कोई कहता है अगर ये a वेक्टर है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर लिखो, तो हमने सीधा सीधा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिक वैल्यू जो थी आई और जे के साथ उसको इंटरचेंज कर दिया, जो यहाँ प्लस था उसको माइनस कर दिया, तो ए और बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सो बच्चों ये सारा पॉइंट तो क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि वर्क, तो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला ऐसा ही। पावर, पावर क्या होता है? फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। ये बात समझ गया? अब एक नई बात सीखे हम लोग यहाँ पे, लाइक अक्सर आपको बताया जाएगा लाइक दिस इज वेक्टर, ऐसे लिखा होगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, आई वुड लाइक टू, पहले मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे पढ़ाऊंगा। सिंस अभी हमने देखा कि ए डॉट बी होता क्या है? ए बी कॉस थीटा, दैट्स करेक्ट। सो ए डॉट बी को हम ए और ऐसे लिख दें बी कॉस थीटा। सो नाउ बी कॉस थीटा इज व्हाट? दिस इज ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड। और ये बी कॉस थीटा को क्या कहेंगे? दिस बी cos theta is magnitude of what? Magnitude of component of b along a. This is what we have understood. इसी को हम लोग, the same thing is called projection of, इसको हम projection of b along a पूछा जाए, projection of b along a पूछा जाए, मतलब आपसे b का component along a पूछा जाए, means this is what being asked to you, because तो वो कैसे निकालोगे? a dot b upon a का mod। तो अगर b का प्रोजेक्शन अलोंग a पूछा जा रहा है तो हम a के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a डॉट b, और नीचे a से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इफ समबडी आस्क कि प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b पूछ दिया, तो इसका मतलब वो a cos थीटा पूछ रहा है, इसका मतलब कि वो a डॉट b और नीचे क्या होना चाहिए? b का मॉड होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड, दिस फैक्ट जो अभी हमने सीखा है, तो इसे रिलेटेड हमें एक एग्जांपल करना चाहिए just to grab this concept. So let's see here, we are doing one question over here. So ऐसे अगर कि क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो हमने यहाँ पे like given in this vector A is this, vector B is this, find projection of vector A along vector B. That is the question. तो आप क्या करेंगे? A का पूछा जा रहा है B के along, तो आप अभी आपने पढ़ा कि जिसका पूछा जा रहा है जिसके along, दूसरा नीचे होता है और ऊपर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी होना चाहिए, तो इट मींस ए डॉट बी, नीचे कौन आना चाहिए? ए या बी? बी का मॉड आएगा। सो सिंपल ना, यू कैन राइट इनके बीच का ए डॉट बी क्या होगा? दिस इज 2 a1 b1 plus a2 b2, that is 6, and now a3 b3, that is -3, and all divided by b का mode. So 1 4 1 4 and this is 9, something like this. तो ये रिजल्ट क्या है? 8 minus 3, that is 5, और 9 and 5 root of 13. तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया this much unit. Find projection of A along B is 5 by root 13 unit. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट खड़ा होकर के चला है। Find projection of A along B is this 5 by root 13 unit. तो हम लोगों ने, so let's do one or two questions more here. जो हमने पढ़ा हुआ उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन ऐसे रखा जाए, experience of the force of 2i 6a plus 4k.
body experience the force of this much, force of this much Newton, and of and having mass of 10 kg, having mass of 10 kg, having mass of 10 kg, then find how much displacement, how much displacement body covers, how much displacement body covers in 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, and also find work done by the force, work done by the force. Body is kept in x o y plane. Body is kept in x o y plane में रखा हुआ. So a body experience the force of 2i plus 6j plus 4k and having mass of 10 kg. Then find how much displacement body covers in 10 seconds and also find work done by the force. And this is say body is kept in x o y plane. So see, I mean, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, so you have to take it something like this. So that's what the body is. So if the body is kept like this is y-axis, this is x-axis, and this is z-axis. And जो force आपने लगा रखा है, that force is, you were saying, 2i 6j plus 4k Newton. So definitely आपका force कैसा है? 3-dimensional force है. Your force is 3-dimensional. So this force is something like this, 3-dimensional. तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में? तो हम लोग कहेंगे ओके दिस फोर्स हैज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूँ मैं. तो बॉडी एक्स और वाई प्लेन में रखा हुआ, तो इस फोर्स को जो लिखा हुआ है दैट इज 2i प्लस 6j प्लस 4k. 2i 6j प्लस 4k, दिस इज द फोर्स बीइंग केप्ट. तो 4k किधर लग रहा होगा? ऊपर फोर्स का कंपोनेंट. तो अगर कोई बॉडी रखी हुई है और इस बॉडी का मास है 10 kg एंड फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर लग रहा है एंड दैट इज 4 न्यूटन और mg है यहाँ पे 10g के बराबर. तो ऑब्वियसली मतलब ये फोर्स, मतलब जो बॉडी है सरफेस पे फोर्स ज्यादा लगा रही है और इस तरह की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है. तो ये वाला फोर्स तो इस बॉडी को इसको उठा नहीं पाएगा. इसका मतलब कि ये फोर्स इस बॉडी को मूव नहीं करा पाएगा. इसका मतलब कि जेड एक्सिस पे कोई मोशन नहीं होने वाला है. सो सिंस mass of body is 10 kg, mass of body is 10 kg, therefore 4k Newton will not be sufficient, 4k Newton will not be sufficient to make body 4k Newton will not be sufficient to make body move up. Therefore 4k will be used to balance the body in vertical direction. तो उससे बैलेंसिंग में यूज हुआ है. Therefore moving force क्या हो जाएगा? Therefore force which is making body move, जो बॉडी को मूव करा रहा है वो क्या है? That is 2i plus 6. और फिर बॉडी 2i and 6j का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जाएगी. तो करोगे ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी? 2i plus 6j divided by 10 kg.
ये एक्सेलरेशन होगा, दैट इज लाइक I by 5 and that is 3 by 5j, ये एक्सेलरेशन होगी। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a t square, so that is how much, so this is 0, 1 by 2, एक्सेलरेशन आपने बता दिया, that is I by 5 and 3 by 5j and t, how many seconds you have said, so in 10 seconds, so 10 का स्क्वायर कर दीजिए, that is 100, so from here this comes out 1 by 2 and अब देखो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो this will become 20i and this will be 620i से 20i and this is 60j, और अब इसे डिवाइड करोगे this will become 10i plus 30j। I hope you understood what I have done। भाई 4k तो उसको बैलेंस करने में खर्च हो जाएगा, तो उसको मूव करने वाला फोर्स क्या होगा 2i plus 6j, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 2i plus 6j by mass, so that is I by 5 and 3 by 5j, और हाफ a t square 100 से मल्टीप्लाई किया, so 5 this is 20i और ये 2 नीचे है तो 10i हो गया, and फिर this is again 60j upon 2 यानी कि 30j, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। so this is your displacement in 10 seconds। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे करेंगे, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपके पास है ही, तो अब आप कौन सा फोर्स लिखोगे, यू कैन राइट दिस कंप्लीट फोर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप ये फोर्स भी लिख सकते हैं, यस, सो दैट फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिख दो, सो फोर्स आपने है आपके पास, फोर्स वाज 2i plus 6j plus 4k, so that is 2i plus 6j plus 4k, ये आपका फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला 10i plus 30j, so this is 10i plus 30j, सॉल्व कर देंगे आप तो ये वर्क निकल के आएगा, नाउ दिस इज 2 a1 b1 a2 b2, so this was 20 and this is a1 b1 और a2 b2 that is 180, और इसके साथ तो इसका तीसरा पार्ट है नहीं, 0 है, so that will be 0, so फाइनली क्या 200 joule, this is the work done। so I hope you have understood how this type of questions are being done। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको बहुत अच्छा सा डॉट प्रोडक्ट समझ में आता है। सो अब तो थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट तो हमने पढ़ ही रखा, अब आगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप प्रमोटिंग। थैंक यू।